Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel Beauty That Inspires. This is your friend Anjum here, and today I am going to talk about Indian viral sunscreen. That's true because it's going so viral in India and everybody is talking about it. And today I am going to share about everything about that sunscreen. और मैं बहुत ही honest review देने वाली because it's not a perfect sunscreen. It does comes with the cons. I'm going to share everything about it today. That why it's going viral, why everybody is loving it, and if it's really worth the hype. Dot and Key Vitamin C plus E Super Bright Sunscreen that's going viral and everybody is enjoying this. And this is the sunscreen. ये इसकी packaging है from Dot and Key and it has SPF 50 PA+++. Always remember when you are buying a sunscreen to check the SPF because SPF 50 मैं हमेशा usually prefer करती हूँ, but it's okay to use it for SPF 42, but मैं हमेशा personally SPF 50 ही prefer करती हूँ. Guys, when you are buying the sunscreen, make sure to check the SPF. हमेशा 30 के above ही लेना because अगर आप 30 के नीचे ले रहे हो तो वो आपको बिल्कुल भी protection enough protection नहीं देने वाला है. So this one it has triple vitamin C, it leaves no white cast, active vitamin D receptors. 50 ग्राम की ये पैकेजिंग है और इसकी जो MRP है वो 495 रुपीज़ है. आपको सेल के टाइम पे लेंगी तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी. It says that it targets UV and blue light damage. It claims to not to only protect your skin from the UV rays, but it also protect your skin from blue light damage, which is amazing because we all know that how much blue light can damage our skin. Coming to second point, it also prevents sunburn and tan. It targets uneven skin tone, pigmentation, dullness, and early age signs. So this is the packaging, guys, and it's so pretty. I'll give 5 out of 5 for the packaging because बहुत ही खूबसूरत सी packaging है इसकी. It's very pretty, it's very simple, but बहुत ही beautiful लगती है. And the good thing is that it's very easy to use. You can control the amount कि आपको जितनी भी यूज़ करनी है ना उतनी ये हाथ में आती है. And it's also very easy to carry around. Packaging के लिए मैं full marks देती हूँ. Pricing is amazing, बहुत ही decently priced है और सबके बजट में आ जाएगा ये. 2 years इसकी shelf life है तो shelf life भी काफ़ी अच्छी है, but sunscreen usually 2 से 3 महीने चलती हैं तो shelf life पे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ sunscreen की क्योंकि बहुत ही कम चलती है ये. Now coming to the texture of the sunscreen, so it has this water like milky texture, runny texture होता है इसका. For me it takes little bit of time to blend, like for my dusky skin tone. I don't know about the fair skin tone because मेरी बहन ने भी इसको यूज़ नहीं किया इतना. तो अगर आपकी dusky skin tone है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा blend होने में, like few seconds लेगा and उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से absorb हो जाता है. तो again अगर आपकी dusky skin tone है तो वो कुछ सेकंड के लिए आपकी स्किन पे white cast भी रहेगा. White cast is not like कि आपको एकदम भूत जैसा लगेंगे आप, बट वो थोड़ा सा विजिबिलिटी रहती है, लाइक बिल्कुल इनविजिबल नहीं होता है, हल्का सा विजिबिलिटी रहती है, बट दैट्स ऑल्सो फॉर वेरी फ्यू सेकंड, लाइक 10 से 12 सेकंड रहता है. उसके बाद वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, विच इज़ अमेजिंग. तो इसकी फिनिश जो है ना वो बहुत ही सही रहती है, बहुत ही अच्छे से फिनिश देता है. नेचुरली ग्लोई काइंड ऑफ फिनिश इसकी रहती है, बहुत ही ज़्यादा ड्रूई नहीं है, बट अगेन इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, सो विच इज़ वेरी नाइस. अगर आपको बहुत ड्रूई लुक चाहिए तो आप इसके नीचे अच्छा सा टोनर और मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रूई स्किन मिलने वाली है. अच्छा, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में बताना चाहती हूँ. इफ़ यू हैव एक्ने, बिकॉज एज यू नो दैट आई एम गेटिंग एक्ने ट्रीटमेंट, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. माय डर्माटोलॉजिस्ट सजेस्टेड मी टू नॉट टू यूज़ एनी प्रोडक्ट विद द फ्रेग्रेंस क्योंकि वो अभी मेरी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, रेडनेस भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत रेड रहती है. सो आई एम अवॉइडिंग एनी प्रोडक्ट विद फ्रेग्रेंस एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, गाइस. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्ने प्रोन स्किन इज दैट इट्स नॉन कोमेडोजेनिक. कोमेडोजेनिक जो होते हैं वो हमारे पोस्ट को जो है वो क्लॉग कर सकते हैं. दे कैन क्रिएट कंसर्न फॉर यू इवन स्पेशली इफ यू हैव एक्ने, वो और ज़्यादा ब्रेकआउट्स कॉज करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ प्रोडक्ट दैट आर नॉन कोमेडोजेनिक एंड दिस सनस्क्रीन क्लेम्स टू बी नॉन कोमेडोजेनिक. और सच में बताऊँ, मुझे भी अभी तक की इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि इसने मुझे मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम किया हो फॉर या फिर एक्ने का जो एरिया उस पर प्रॉब्लम किया हो. एंड अ गुड थिंग इज दैट इट ऑल्सो प्रीटी वेल हाइड माई रेडनेस. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्लस पॉइंट है कि ये रेडनेस को भी थोड़ा सा हाइड करता है. इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, इट्स ऑल्सो एसेंशियल ऑयल्स फ्री. सो इफ यू हैव एलर्जीज विद एसेंशियल ऑयल्स तो उसमें ये नहीं है. इट्स ऑल्सो क्रूएल्टी फ्री एंड इट्स non-comedogenic. So that's something I really want to tell to you all because that's very important. Coming to my experience, guys, first it leaves no white cast. जैसे कि मैंने आपको बताया that अगर आपकी डस्की स्किन टोन है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, बस फॉर फ्यू सेकंड वो थोड़ा सा ग्रेश रहेगा, बट उसके बाद इट completely get absorbed. It's very lightweight and feels very comfortable on skin. Even if you are layering too many products, then also it's not going to create any problem. It's also sweat and water resistant. So I think we are going to love it in the summer too. मैं इसको जिम में भी यूज़ करती हूँ तो थोड़ा बहुत जो मुझे स्वेट भी आता है ना तो वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है कि मैंने फेस पे सनस्क्रीन लगाई है. सो इट्स दैट गुड. आप इसको वर्कआउट के टाइम पे भी इजीली वेयर कर सकते हैं.
एज आई सेड दैट इज फ्रेग्रेंस फ्री, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू स्मेल वेरी गुड। मैं जब इसको लगाती हूँ ना तो थोड़ी देर तक की जो इसकी स्मेल रहती है वो बहुत ही वियर्ड टाइप की रहती है, जो बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे, बट वो ऑफ कोर्स कुछ सेकंड तक रहती है। लेकिन जब मैंने ये रिव्यू इंस्टाग्राम पे डाला था तो लोगों ने मुझे बताया दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्मेल, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी स्मेल से। आई थॉट इट माइट बी बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव नोज, बिकॉज गाइज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव नोज एंड फ्यू स्मेल्स आर देयर, लाइक कुछ स्मेल्स ऐसी हैं जो मेरी नोज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, एंड इवन इफ इट्स अननोटिसेबल फॉर मैनी पीपल, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं। और कुछ स्मेल्स ऐसी भी होती हैं जो मेरे माइग्रेन को ट्रिगर करती है, सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी पर्सनली। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम कि मुझे इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है फॉर फ्यू सेकेंड, जब तक मैं उसको अप्लाई कर रही होती हूँ, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपकी सेंसिटिव नोज है तो मे बी वो आपके साथ भी होगा, बट अदर देन दैट कमेंट्स में भी मुझे लोगों ने बताया एंड डीएम पे किया था दैट दे डोंट हैव एनी इशू विद द स्मेल, दे आर ओके विद इट, और वो किसी को बॉदर नहीं करती, तो वो सिर्फ मुझे बॉदर करती है। मेरी नोज बहुत सेंसिटिव है व्हेन इट कम्स टू स्मेल, तो बहुत ही ज़्यादा जो मेरे ओपिनियंस हैं वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। आई वुड से दिस सनस्क्रीन इज टोटली वर्थ द हाइप because it's so good. The finish it gives, it's lightweight, it leaves no white cast, it is fragrance free, non-comedogenic, sweat and water resistant, it is essential oils free, it's cruelty free, it's just so good guys. At this price you will be getting such a beautiful sunscreen that's giving you an amazing finish. बहुत सारी कोरियन सनस्क्रीन्स की तरह इसकी फिनिश है एक्चुअली, और कोरियन सनस्क्रीन एज यू नो कि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, लाइक 1000 से ऊपर की ही उनकी MRP होती है, बट दिस वन इज अमेजिंग एंड आई वुड से यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दिस वन. दिस इज अ बिग हिट फॉर मी. I will give it a 5 out of 5 marks. So yes, of course every skin will love it. आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. स्किन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा दैट हाउ यू लाइक्ड इट एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और अगर आपको और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप वो भी पूछ सकते हैं. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.